میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ 16 دسمبر کو اسپین سے مراکش پہنچے۔ میرا چلنا، میرا رکنا۔ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں ایک بڑے عظیم بزرگ کی بارگاہ میں، جن کو قطب مغرب بھی کہا جاتا ہے۔ تیرے واسطے زبردست بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چھتری بھی اڑنے والی ہے۔ اے مقامات مقدسہ، یا رب کریم ان کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرو۔ اے مقامات مقدسہ، شہر زرعون پہنچے ہیں۔ یہاں حضرت مولائی ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے۔ قمرون قمرون محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ 17 دسمبر ہفتے کے دن ہمارا سفر فاس سے شہر مراکش کی طرف تھا، اور یہ سفر ہم نے بذریعہ ٹرین کیا۔ میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا۔ دوران سفر نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو تربیت کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور اسی دوران مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں سے مشورے بھی جاری رہے۔ اس وقت ہم فیس سے نکلے ہیں۔ راستے میں ٹرین کا ٹائم بہت قریب تھا، اور الحمدللہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم رحمت، اور اللہ نے کرم فرمایا۔ وہاں پر الحمدللہ 7 اولیاء کرام تو اسے مشہور ہیں، دیگر بھی اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ ہمارا بھی اس وقت سفر مراکش کی طرف جاری ہے، موروکو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی آپ سب کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول، علماء اور نیک لوگوں کی صحبت، یعنی ان کی ہی دوستی رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، انہی کے ساتھ ہمیں تعلق یوں مضبوط رکھنا چاہیے کہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہ ہی بندہ سیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی سوچ عطا کرے، اور ہمیں ان کے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ تنہائی سے نیکوں کی صحبت اچھی، اور بروں کے مقابلے میں تنہائی اچھی۔ عصر کے وقت ٹرین مراکش کے اسٹیشن پر رکی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق یہ مدنی مذاکرے کا وقت تھا۔ اللہ کا شکر، ابھی راستے میں ہم یہ مدنی مذاکرہ بھی جاری ہو چکا تھا، ٹرین میں تھے تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی سعادت مل رہی ہے۔ ابھی یہاں عصر پڑھنی ہے ہم کو، انشاءاللہ ابھی ہم عصر پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تو الحمدللہ ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی بھی سعادت ملتی رہی۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری
जाना मेरा आना हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या शराबियों से गालियां बकने वालों के साथ होगी तो आइन मुमकिन है कि वो दोस्त मरते वक्त उसके सामने कर दिए जाए और इस तरह उसके खात्मे का मसला जो है वो गड़बड़ हो जाए। दावत इस्लामी अच्छे लोगों से करनी चाहिए, नेक बंदों से करनी चाहिए जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। इस्लामी मराकश में रिजालुस सबआ यानी मराकश के 7 औलिया बहुत मशहूर व मारूफ हैं और यहाँ के आशिकान औलिया भी अपने दिल में इनकी बहुत अकीदत और एहतराम रखते हैं और 7 मज़ारात पर हाज़िरी की बाकायदा एक तरतीब है जो औलिया किराम ने बयान की और मुतवातिर किताबों में मिलती है। ये मक़ामात बिलाखिर हम उस तरतीब के मुताबिक सबसे पहले हजरत सैयदना यूसुफ बिन अली सन हाजी रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार पर हाजिर हुए, उनकी सीरत को मुख्तसर बयान किया और फातिहा की। मराकश में मौजूद हैं सैयदना यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार के पास हैं। आपका शुमार औलिया कामिलीन और सूफिया औलिया में होता है और आप उन 7 बुजुर्गों में से हैं कि जो 7 रिजाल 7 सेंट्स के नाम से मराकश में मशहूर हैं और उलमा फरमाते हैं कि इसकी तरतीब है हाज़िरी की। सबसे पहले हाज़िरी देनी चाहिए इनके मज़ार पर। आपको तसव्वुफ़ पे इमाम तादली के नाम से जाना जाता है। आप मराकश में सनहाजा अमाज़ेक के ख़ानदान में पैदा हुए, अपनी पूरी ज़िंदगी शहर में बसर की, सुभान अल्लाह। और आपका नाम गार का आदमी द कैव मेन के नाम से पड़ गया क्योंकि आपने करीबी गार में ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर, अरसा हयात आपने वही गुजारा और लोगों को ये मालूम हो गया कि आपके पास एक ऐसी रूहानी ताकत है जो भूख और बीमारी के खिलाफ मज़ाहिमत करती है। जब आपकी ये जिंदा करामत देखी गई तो फिर हुसूल फैज़ के लिए लोगों को आपकी तरफ तांता बन गया और आज भी ज़ायरीन आपके मज़ार पर हुसूल बरकत के लिए आते हैं और इस इलाके का नाम जो है वो आप ही के नाम से मशहूर है और आप मराकश के उन मारूफ 7 औलिया में आपका नाम होता है। और सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि आप ही के मज़ार पर ज़ियारत इब्तिदा करनी चाहिए। तो आज हम मराकश अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और हमने इब्तिदा कर दी है इनकी बारगाह में हाज़िरी की। इंशाल्लाह कुछ देर में निगरान शूरा भी इन्हें पहुँच जाएंगे और इनकी बारगाह में आता है कि आपको इस कदर सब्र हासिल था कि जिस्म का कुछ गोश्त बीमारी की वजह से जब गिर जाता तो शुक्राने के तौर पर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नवाफिल पढ़ते और मज़ीद अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों का फैज़ान हमें अता फरमाए, इनके सदक़े रब्बे करीम हमें सब्र अता फरमाए और इनका फैज़ान नसीब फरमाए। अब चूँकि मज़ार शरीफ तो बंद है तो हम बाहर से इंशाअल्लाह हाज़िरी देंगे। अल्लाह जो मुश्किल, जो परेशानी, जो दुख, जो भी हमारी मुसीबतें अल्लाह सब तू जानता है, अपने करम से दूर फरमा और हम सबको नेक बना दे, अपने पसंद के बंदों में शामिल फरमा ले। हरमैन तय्यबैन की हाज़िरियाँ हमारा मुक़द्दर फरमा और आखिरी वक्त हमारा मदीने में गुजरे और ईमान और आफ़ियत के साथ वही मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आपका जो निक नेम है अल मुब्तला बिकॉज ही वॉज एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी। आपको एक बीमारी भी थी जिसकी वजह से आप सब्र किया करते थे और आपको मुब्तला भी कहा जाता था और केव मैन भी कहा जाता था क्योंकि आप गार में रहा करते थे और इस गार में आपकी तदफीन हुई 593 हिजरी में। तो सुभान अल्लाह, he was an example of patience for affliction, sincerity and आप एक मिसाल थे जो है वो सब्र की। अल्लाह पाक इनके सदके हमें भी सब्र की तौफीक अता फरमाए।
سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل سرے شمشیر پر چلنا پڑے مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. 7 رجال، 7 وہ عظیم ہستیاں جن کو 7 سینٹس بھی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہستی حضرت ابو العباس سبتی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا پورا نام ابو العباس بن جعفر بن خزرجی سبتی ہے. آپ کی ولادت 524 سنہ ہجری میں 1129 سنہ عیسوی میں شہر سبتہ میں ہوئی. آپ خوش لباس تھے، فصیح و بلیغ تھے اور قادر الکلام تھے، بہت زیادہ صبر کرنے والے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا تو آپ اس کا اچھائی سے ہی پیش آتے. غرباء اور مساکین اور بیواؤں پر عنایات کرتے اور صدقات خوب تقسیم فرماتے. آپ کے ویسے تو بڑے فضائل ہیں، مگر ایک فضیلت آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پیارے آقا علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سباق یعنی آگے نکل جانے والوں میں شامل ہے. پھر مزید پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ برق یعنی بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا. ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور آج ان بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها. اس وقت ہم حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ کے خلیفہ عبدالعزیز تبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. لیکن رات تھوڑا لیٹ ہو گئے، لگتا ہے مزار شریف بند ہو گیا، تو دعا وغیرہ فاتحہ وغیرہ ہوئی ہے. یہ جو 7 مشہور بزرگوں کے نام ہیں، ان میں 5واں ان کا نام ہے. الحمدللہ ابھی ہم چھٹے بزرگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن 7 اولیاء کرام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، ان میں چھٹا نام سید ابو محمد عبداللہ الغزوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کل موروکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کافی اہل محبت لگے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور جب بھی پاکستان کا ہے تو بہت محبت سے یہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو حضرت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ فاتحہ وغیرہ کریں گے. وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون. الحمدللہ رب العالمین. 6 اولیاء کرام کی جناب میں ہماری حاضری ہو چکی ہے، اور ابھی یہاں موروکو مراکش کے 9:22 ہوئے ہیں. بہت پرانا علاقہ ہے، اور سمجھیے کہ یہ بہت بڑا محلہ علاقہ ہے، اور وہیں پر ان اولیاء کرام کے
मज़ारात हैं। वकुल्लुल कौनि अना। इन 7 बुजुर्गों में दलालुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ इमाम जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में भी हाज़िरी हुई और सुभान अल्लाह उनके मज़ार की हाज़िरी का शरफ एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। अरसे से तमन्ना थी कि उनकी बारगाह में हाज़िरी हो, और इस सफ़र में एक और कमाल का काम ये हुआ कि निगरान शुरा ने मदनी काफ़िले के शुरका को ये ज़हन दिया कि क्यों ना साहिब दलालुल खैरात शरीफ के मज़ार पर जाने से पहले दलालुल खैरात शरीफ का मुताला कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले के इस्लामी भाइयों ने दलालुल खैरात शरीफ पढ़ना शुरू की। अब यकीन करें मेरा बरसों से अरमान था कि दलालुल खैरात शरीफ लिखने वाली अजीम हस्ती मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में हाज़िरी हो। अल्लाह ने ये अरमान पूरा किया। मैं रब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनसे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि इनके फ़ज़ाइल पढ़े, फिर इनकी किताब दलालुल खैरात शरीफ, सुभान अल्लाह, यानी किताबों में ये पढ़ा कि अरसे तक इनकी कब्र से मुश्क की खुशबू आती रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि इनकी कब्र को शहर सूस से शिफ्ट करना पड़ा मराकश की तरफ किसी वजह से। तो जब इनकी कब्र खोली गई तो इनका जिस्म वैसे ही सलामत था। कुछ अर्सा पहले तदफीन से पहले ख़त बनाया गया था, वो ख़त भी वैसा ही था, बल्कि किसी ने आपके चेहरे पर उंगली रख कर देखा तो जिस तरह हम जिंदा लोगों के चेहरे पर कोई उंगली रखे तो वाइट हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, यानी खून की गर्दिश तो ऐसा भी नज़र आएगा। सुभान अल्लाह। जबी महली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, होला माने मोहम्मद का बदन मैला नहीं होता। इन्हीं की किताब है दलालुल खैरात, और दलालुल खैरात की भी क्या बात है इसमें माशाअल्लाह। दलालुल खैरात में अगर हम बात करें तो इन्होंने बाकसरत दुरूद पाक लिखे, और इसमें अंबिया कराम का ज़िक्र है, लेबत अतहार का ज़िक्र है, असहाब का ज़िक्र है, और फरिश्तों का ज़िक्र है, दुआएं हैं। बड़ी बाबरकत किताब है। हमने नियत की थी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किताब हज़रत के कदमों में आकर हम इसका ख़त्म शरीफ होगा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यही इसका ख़त्म शरीफ किया दलालुल खैरात शरीफ का, और दुआ भी की। कई इस्लामी भाइयों ने उसका आखिरी जो बाब है, आखिरी जो जुज है, वो हज़रत इमाम जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला के कदमों में जाकर पढ़ा, और गोया दलालुल खैरात शरीफ का ख़त्म हुआ। आपके मज़ार पर रिक्कत अंगेज़ दुआ हुई। एक अजब मंजर था, आंखें अश्कबार थी। बड़ा तवील सफ़र करके मौला करीम हम यहाँ पर तेरे वली कामिल आशिक रसूल साहिब दलालुल खैरात हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमा के मज़ार पर के कदमों में हाजिर हुए हैं। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर, और जो शिफा ये दलालुल खैरात शरीफ पढ़ने में जो हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो माफ़ कर दे। और मौला इस किताब की और साहिब किताब की बरकतों से हमें मालामाल फरमा। या रब्बी करीम, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इन्होंने दुरूद शरीफ लिखे हैं, जो इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की है, दीगर जो इन्होंने इस किताब में जो दलालुल खैरात में लिखा, या अल्लाह उसकी बरकतें हमें अता फरमा। और मौला करीम जो इसमें दुआएं लिखी हुई हैं, मौला करीम तुझे तेरे हबीब का वास्ता, साहिब दलालुल खैरात का वास्ता, ये दुआएं हमारे हक़ में कबूल कर। हमें मांगना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता। और इन्होंने जो कुछ तेरी बारगाह में दुआएं की है, सवाल किए, अपने हबीब का सदका अता करते, इनके कदमों में हाजिर होकर तुझसे मांग रहे, महरूम ना लौटाना। सालिक को बख्श गोलाई के सजा हो, सालिक को बख्श या रब, गोलाई के सजा हो। मैं तो हबीब का हूँ, मैं तो हबीब का हूँ, मुझ पर इताब कैसा। ईमान और आफियत मीठे मदीने में शहादत की मौत, जन्नत बकी में मदफन, जन्नत फिरदौस से प्यारे आका का पड़ोस अता कर। आमीन। या अल्लाह हमें इस सुन्नत को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खैर आफियत वाली तवील जिंदगी अता। आमीन। या अल्लाह
हम सब जितने हाजिर हैं, हम सब के जायज़ हाजतों पर, मुरादों पर, इंतजाओं पर रहमत की नज़र, रहमत की नज़र। घरों में जो बीमार है सबको सेहत देते हैं, सबको सेहत देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 मुल्कों का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसका मकसद मज़ारात औलिया की ज़ियारत और दावत इस्लामी के तरक्याती कामों का जायज़ा लेना था। अल्लाह करीम इस सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस सफ़र को हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और इस सफ़र की बरकत से हम सबको मदीना मुनव्वरा का सफ़र नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी हो दुआएं या अल्लाह, मेरा चलना, मेरा रुकना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मोरक्को कैसाब्लांका के एयरपोर्ट पर हैं और ये तकरीबन 4 मुल्कों का सफ़र जो था इख्तिताम पजीर हुआ और अब इंशाअल्लाह कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए वापसी है। हमारे एयरपोर्ट पर टर्की और स्पेन के इस्लाम भाई को छोड़ने आए हैं। अल्लाह पाक सफ़र पर खैर फरमाए, दुआ कीजिएगा और अल्लाह करे कि इस सफ़र की जो बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरियाँ हुई अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जो गुनाह हुए अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, अब तक के सारे गुनाह अल्लाह पाक आमीन। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे